Indulge in the royal Mughal experience at Lal Killa. Have a peek at the traditional Pakistani and Indian food served at its best and tranquilize your taste buds. We promise an intimate dining experience that offers something for every patron. Discover the taste of kingly Indian cuisines and rejuvenate with the grandiose of Mughals. Lal Killa is a 100% halal restaurant in Sydney. Our staff and all chefs respect this tenant and work accordingly to deliver the best dining experience. ذائقے کا سفر لال قلعہ کے سنگ، بیسٹ اوتھینٹک پاکستانی ٹیسٹ کے لیے لال قلعہ آئیں۔ ہماری 2 برانچز ہیں، لال قلعہ ڈارلنگ ہاربر اور لال قلعہ سرے ہلز۔ جو نام وہی پہچان، پاکستان پاکستان، ہمارا دیش ہے پاکستان، ہماری جان ہے پاکستان۔ پہچان ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت پاکستان کا جشن آزادی مبارک ہو۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہم سب کو اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہو بحیثیت پاکستانی سفیر ہمیں پاکستان کے پرچم کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ایک روشن چہرے کو، پاکستان کے ایک برائٹ فیس کو پوری دنیا میں ہم نے روشناس کرانا ہے۔ میں بھی پاکستان ہوں اور تو بھی پاکستان ہے، اور ہم سب پاکستان کی آن اور شان ہے۔ اور آج ہم سب پاکستان کے جشن آزادی کو بڑے اہتمام سے منائیں گے، اس کے باوجود کہ ہم کووڈ-19 کے اس پینڈیمک میں بہت ساری الجھنوں کا شکار ہیں، لیکن جشن آزادی کے دن کوئی الجھن نہیں، بلکہ محبتوں کا تبادلہ ہوگا۔ اور اسی محبتوں کے تبادلے کے سلسلے میں پہچان ٹی وی کے ایک بہت پراؤڈ اسپانسر لال قلعہ کی جانب سے آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ لال قلعہ کی جانب سے 14 اگست اور 15 اگست کو دوستی کا ایک انوکھا پیغام انوکھے انداز سے دیا جا رہا ہے۔ 14 اگست کو اور 15 اگست کو جو بھی لال قلعہ کے دونوں ریسٹورنٹس جو سرے ہل یا ڈارلنگ ہاربر میں ہیں، دونوں میں اگر آپ جائیں گے، ڈنر کریں گے، تو لال قلعہ کی جانب سے جشن آزادی کے موقع پر آپ کے لیے ڈیزرٹ یا سویٹ ڈش بالکل مفت فراہم کی جائے گی۔ شفق جعفری کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو اور ان کی میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک۔ اب ہم سب مل کر ایک آواز ہو کر بولیں گے، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، اور ہم نے نعرہ لگا دیا ہے اور مل کر پاکستان زندہ باد کا۔ آپ سب لوگوں کو جشن آزادی بہت مبارک۔ یہ رات بہت تاریخی رات ہے اور بہت اہم رات ہے، اور 13-14 کی درمیانی شب، اور کیا کہنے ہیں سب کے، شب تو ہے ہی بڑی خاص قسم کی۔ اس وقت جو مسکراتے ہوئے چہرے میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ روشن چہرے ہیں، یہ پاکستان کی پہچان ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں آج ان کے ساتھ اپنی بھی پہچان کراؤں، پاکستان کی بھی پہچان کراؤں، اس لیے میں نے کہا ایک ساتھ ہی ستاروں کی محفل سجا دوں۔ تو آج ستاروں کی محفل سجی ہے اور بڑی خاص محفل ہے، اور اس میں کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے میں سہارا لے لوں، تاکہ میں جب کوئی قداور شخصیت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو الفاظ کا انتخاب بہت اچھا کرنا ہوتا ہے، جو کہ اگر میں کوتاہی کر جاؤں تو میرے ساتھ میری ہر دل عزیز بہن بھی کہہ لیں، میں تو اکثر ان کو ماں بھی بنا دیتی ہوں، میری دوست، میری غمخوار اور میری منتور، میری استاد ڈاکٹر نگہت نسیم میرے ساتھ موجود ہیں۔ اور نگہت آپ کو ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے شو پہ۔ آپ کو بہت احسان ہے، آپ کا اپنا ٹی وی ہے، لیکن ایک اور جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، میں چاہتی ہوں ان کا تعارف آپ کرائیں۔ جی دوستو، اب پہچان کے پلیٹ فارم پہ بہت دفعہ ملاقات ہو چکی ہے۔ ہم چلتے ہیں لندن اور ملاقات اور بات کرتے ہیں جناب صفدر حمدانی صاحب سے، اور جو
आज का जो तारीखी दिन है और जो सातें हैं, इस लिहाज से मुझे यूं लगता है कि आपसे ज्यादा अहम कोई शख्स नहीं होगा जो हमें ये बता सके कि जी आज़ादी जो है वो उसका मकसद, उसका ऐलान, उसका क़याम और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सारा कुछ। और जो आजकल जो एक, बल्कि आजकल तो नहीं, मैं तो यूं कहूंगी कि हर बार आज़ादी के वक्त ही ये एक झगड़ा सा खड़ा होता है कि हाँ पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था। हमारा हाँ बिलीव है, हम जानते हैं कि ये 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को ऐलान हुआ था और उसके तारीखी फैक्ट्स भी हमको मालूम है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस चीज को बताती हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। तो आज की जो गुफ्तगू है, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम उन तारीखी हकायक पर बात करें, और मैं समझती हूँ कि इसके लिए सफदर हमदानी साहब से बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता, चूँकि आपके वालिद गिरामी ने ऐलान किया था पाकिस्तान के क़याम का। जो पहला ऐलान था वो आपके वालिद साहब ने किया था। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज पहचान टीवी के प्लेटफॉर्म पे और सिडनी से पहली बार कोई एक हाँ तारीखी एक प्रोग्राम होने जा रहा है, और वो आपकी जिम्मेदारी पे। आप प्लीज हमें बताइए, हमें गाइड करें, इस नस्ल को भी गाइड कीजिए कि ये सारा क्या हुआ था और क्यों लोगों में इतनी बेचैनी, और हमेशा एक हाँ मुखालिफ एक ग्रुप जो है वो एक तहरीक की सूरत में उठता है, फिर उनको बताया जाता है हर साल ही क्यों होता है आखिर। ये मैं जानती हूँ, करामी के मैं जानती हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक्चुअली मेरे नजदीक ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वंस फॉर ऑल इस सारे किस्से को वो निपटा दे और कह दे कि ये हुआ था, वो तारीख में चला जाए, वो एक दस्तावेज का हिस्सा बन जाए, तो फिर ये कोई इतने मसाइल फिर सामने नहीं आएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है फिर, प्लीज। हाँ, सबसे पहले तो डॉक्टर निगत नसीम साहिबा और शफक जाफरी पहचान टीवी के हवाले से आप दोनों का शुक्रिया कि मुझ जैसे तल्ख नवा को आपने ऐसे बहुत हसीन मौके पर याद कर लिया और मौजू भी खासा तल्ख छेड़ा। सबसे पहले तो वतन अजीज में रहने वालों को और वतन अजीज से बाहर और बिल्कुल बाहर रहने वालों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। आज़ादी को मेरा ख्याल है कभी देखना हो तो पिंजरे में बंद चिड़िया को देखिए और फिर आईने की शक्ल देखिए, या इस दौर में कश्मीर के रहने वालों को देखिए और फिर अपने आप पे एक नज़र दौड़ाएं कि हमने अल्लाह की इस नेमत का कैसा कुफरान किया है। मैं आगाज़ कलाम में मरसिया नहीं छेड़ना चाहता, मगर जो सवाल आपने किया है ये इस हवाले से बहुत तल्ख है कि हम मिन हैसुल मजमू तनाज़ात पैदा करने वाली उम्मत है, कौम नहीं है, लोग नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, उम्मत है, उम्मत। हमने अल्लाह के आखिरी रसूल की तारीख़ पैदाइश को मुतनाज़े बनाया। हमने कौन कौन सी हस्ती है जिसको मुतनाज़े नहीं बनाया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख को भी मुतनाज़े बनाया। लेकिन मेरी बड़ी गहरी नज़र है इस मौजू के ऊपर, सिर्फ अपने वालिद मरहूम के हवाले से नहीं, पाकिस्तान के एक बेटे के हवाले से और फर्जंदे रेडियो के हवाले से भी। मुझे ये कहने दीजिए कि इस सारे शाखसाने में जिस कदर मनफी किरदार खुद इस कौमी वर्से के हामिल कौमी इदारे रेडियो पाकिस्तान का रहा, पाकिस्तान की हर हुकूमत का रहा, हर हुकूमत बिला इस्तिस्ना, हर वजारत इत्तलात का रहा, उसमें अवाम का कोई कसूर नहीं। आपने अवाम तक कोई मालूमात पहुंचाई ही नहीं जी बिल्कुल, और आपने 72-73 साल से इस तनाज़े को तनाज़ा ही रहने दिया। बिल्कुल, वो खुश होते हैं मुझे लगता है। मुझे जल्दी से ये बताने दीजिए क्योंकि हमारे पास तकरीबन 9 मिनट हैं, जब आपके यहाँ 12 बजेंगे
جی اعلان تو شروع ہم ہوگا اعلان جی سمجھا کریں گے، پھر اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ یہ ایک عجیب سانحہ ہے کہ اس ضمن کی کوئی ایک تاریخی دستاویزات نہ حکومت پاکستان کے پاس کہیں محفوظ ہے پہلے اعلان کے حوالے سے، اور نہ کسی اور چیز میں۔ اچھا، یہ تنازع جو ہے یہ 10 سال پہلے شروع ہوا ہے، یہ کوئی 70 سال کا تنازع نہیں ہے۔ جی ہم آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں، میری 50 کی پیدائش ہے، آپ لوگوں کی پیدائش میں بتانا نہیں چاہتا، خوشی کے دن زبردستی عمریں پتہ چل جائیں گی۔ تو یہ بالکل تازہ بات ہے، اور کہاں سے شروع ہوئی ہے نام نہیں لوں گا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا یا سب سے بڑا کہہ لیجیے اخبار اور ٹیلی ویژن کا اشاعتی ادارہ ہے، اس نے 10 سال پہلے ایک پاکستان کرونیکل کے نام سے ایک کتاب شائع کروائی۔ ایسی کتابوں کے لیے ایک پوری جماعت بنائی جاتی ہے، پھر اس کی چیکنگ کے لیے ایک جماعت ہوتی ہے، جی بالکل سے جائے کہ پھر جا کے یہ کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل ایک فرد واحد نے پورا پاکستان کرونیکل جو ہے اس کی تدوین کی۔ اچھا، یہ موضوع چونکہ ہمارے مطلب کا ہے تو ہم نے اس میں سے یہی موضوع چنا، ورنہ تو اللہ جانے اس میں کیا کچھ ہوگا۔ جی کیا کچھ غلط بھی ہوگا جی آزادی کی نشریات کے حوالے سے خاص طور پہ جتنی غلط بیانی ہو سکتی ہے اس کتاب میں وہ کی گئی ہے، گاڈ اور اس کا ذمہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ دونوں میڈیا سے بھی متعلق ہیں، ادب سے بھی متعلق ہیں، اور تاریخی تحقیق سے بھی متعلق ہیں۔ جی ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی کتب چھپ کے شائع ہو کے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دیگر لائبریریوں میں چلی جاتی ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے وہی آمنہ صدقنا مصدقہ ہو جاتا ہے، بالکل صحیح بات جی جی ایسے ہی کہ ہوتا جائے کہ اس میں تبدیلی کی جائے۔ جیسے ہے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، محقق جو ہیں کٹ پیسٹ والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کا اعلان 13 اور 14 اگست کو نہیں ہوا تھا، 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو۔ جی جی پھر انہوں نے اس کی تفصیل جو کچھ لکھی ہے وہ ساری غلط ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ ریڈیو پاکستان لاہور سے رات کو قاری ظاہر قاسمی صاحب نے تلاوت کی تھی، بالکل غلط ہے۔ قاری ظاہر قاسمی صاحب نے اپنی پوری حیات کراچی میں گزاری، وہ کبھی پاکستان میں لاہور میں آئے ہی نہیں، اور لاہور میں رات کو تلاوت کلام پاک ہوئی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کلام اقبال نشر ہوا وہ سنتو خان قوال نے اور ان کے ہمنوا میں پیش کیا، قطعاً غلط۔ یہ کلام ہوا خیمہ زن آ کے فصل بہار، علامہ اقبال کا کلام ہے۔ یہ نصرت فتح علی خان کے والد اور ان کے چچا مبارک فتح علی خان نے گایا تھا۔ اس کے بعد 3-4 چیزیں غلط ہیں۔ پھر پشاور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پر تلاوت کلام پاک قاری فدا حسین نے کی، جبکہ یہ تلاوت قاری تجمل حسین امروہی نے کی۔ مائی گاڈ اتنی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کی نشریات کی تاریخ میں میں وہ خوش قسمت آدمی ہوں جس نے اگست 1984 میں ایک دستاویزی پروگرام تیار کیا تھا آغاز سفر کے نام سے۔ جی یہ پروگرام میری اس لائبریری میں بھی موجود ہے اور ریڈیو پاکستان کے سینٹرل آرکائیو میں بھی موجود ہے۔ یہ پہلا اور آخری پروگرام تھا جس میں 1984 تک پشاور اور لاہور ریڈیو کے جو لوگ زندہ تھے اس رات کے، جنہوں نے رات کی نشریات میں حصہ لیا تھا، ان کے مختصر انٹرویوز تھے۔ اچھا سب سے پہلے بہت بڑے آدمی جن کا نام ظہور آذر ہے۔ ظہور آذر صاحب میری اطلاعات کے مطابق ابھی حیات ہیں، اگرچہ اس قدر علیل ہیں کہ بول چال نہیں سکتے۔ جی ظہور آذر صاحب پاکستان کے تمام بڑے سے بڑے مناصب پہ رہے۔ جس وقت یہ پروگرام میں نے ریکارڈ کیا اور ان کو دعوت دی، اس وقت وہ ضیاء الحق کے زمانے میں کیبنٹ سیکرٹری تھے، جو بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ جی اس سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیکرٹری بھی رہے، اس سے پہلے وہ اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری بھی رہے، اس سے پہلے وہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان بھی رہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس سارے عرصے میں نہ کبھی ان کو کسی نے ریکارڈ کیا، جی نہ کبھی انہوں نے کہا کہ مجھے ریکارڈ کر لیجیے، میں نے یہ کام کیا۔ جی ظہور آذر صاحب کے علاوہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو لاہور پہ کام کرنے والوں میں بہت بڑے وکیل اپنے دور کے
एजाज बटालवी साहब मौजूद थे, उनका इंटरव्यू है। बहुत बड़े शायर और मुहक्किक जिया मिसाल जालंधरी साहब, उनका इंटरव्यू मौजूद है। इसी तरह कुछ और लोगों के, पेशावर से अहमद नदीम कासमी जो उस रात को स्क्रिप्ट एडिटर थे पेशावर स्टेशन पे, जी उनका इंटरव्यू है। कारी तजम्मुल हुसैन अमरोवी जिन्होंने तलावत की थी और जिनका नाम मैंने आपको बताया, उनका इंटरव्यू है। और अफसोस की बात यह है कि इस इंटरव्यू के 3 दिन के बाद कारी तजम्मुल की डेथ हो गई थी और वो निहायत अजीज थे जब उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। जी उन तमाम लोगों ने यके बाद दीगरे 13 और 14 अगस्त सन 47 की दरमियानी रात के अल्फाज बोले हैं। जी ये सब के सब झूठे नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता। कब तक? और इतने बड़े लोग, और खास तौर पे मैं कारी साहब की बात करता हूं जो 3 दिन के बाद मर गए और डेथ बेड पे थे। क्या डेथ बेड पे भी वो ये झूठ बोलते? मेरे वालिद भी अपने बच्चों को तो कम से कम बताते कि नहीं बेटा हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमें हुकूमत ने कहा था ये डेट बोलो। ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरी तारीख है जी पूरी तारीख है कि ये कैसे हुआ। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख 14 या 15 अगस्त नहीं थी, जो गोरों ने तय की थी, जिनके मुल्क में मैं रह रहा हूं, और ऐसे फसादात पैदा करने के ये माहिर हैं। इस बिल्कुल मुल्क का सिर्फ ये फायदा है कि यहाँ सब कुछ आप कह सकते हैं मुहज़्ज़ब अंदाज। जो बड़े सगीर की आज़ादी और इंतकाले इक़्तिदार की तारीख पहले मुकर्रर की गई थी, वो 30 जून 1948 थी। अच्छा यहाँ के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के कागजात में ये डेट मौजूद है। फिर इस डेट को चेंज किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन साहब आए और उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर सारी जमातों से मिलके यहाँ बरतानिया वालों को लिखा कि अगर जल्दी से आज़ादी ना दी गई पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तो यहाँ फिरका वाराना फसादात के खतरे हो जाएंगे। जी 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 इसके बाद एक और डेट तय हुई और इसके बाद आखिरी डेट तय हुई 15 अगस्त। जी 15 अगस्त जी। अब जो 15 अगस्त तय हुई तो भारत के ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर जायसे में ये निकाला कि 15 अगस्त हमारे लिए नहस दिन है। जी ये तारीख की किताबों में लिखा हुआ जी जी तारीख में लिखा है और बिल्कुल। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में भी मौजूद है। लिहाजा ये तय हुआ कि ठीक है 15 को आज़ादी नहीं होगी। 14 अगस्त की सुबह को, ये तारीख की किताबों में मौजूद है, 14 अगस्त की सुबह को लॉर्ड माउंटबेटन कराची पहुंचे हैं। उन्होंने इंतकाले इक़्तिदार किया है। कायद आज़म अलैहिर्रहमान ने कानून साज असेंबली से खिताब किया है, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं फिल्म में, और लॉर्ड माउंटबेटन पीछे बैठे हैं उनके। लिहाजा 14 अगस्त को पाकिस्तान को इक़्तिदार मुंतकिल करने के बाद रात को वो दिल्ली चले गए हैं और 14 और 15 की दरमियानी शब को दिल्ली में। अच्छा, अब ये वक्त हो गया, मैं कतई कलामी कर रही हूँ ताकि आपकी वो बहुत जबरदस्त वीडियो है वो हम वो ऐलान सुनना चाहते हैं, फिर बात करेंगे यहीं से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये चंद सेकंड चाहिए इसको शेयर करने के लिए, मैं इस दौरान शेयर कर रही हूँ। और बहुत मजेदार सी वीडियो है और यकीनन आप लोग सब बहुत तारीखी वीडियो है। बिल्कुल ये बहुत तारीखी वीडियो है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और किस तरह ऐलान हुआ पाकिस्तान का। इसकी आवाज बढ़ा दो जरा। 13 और 14 अगस्त 1947 की दरमियानी रात पाकिस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी के सफर का इख्तिताम और सुबह आज़ादी के सफर का आगाज थी। क़याम पाकिस्तान का पहला ऐलान लाहौर रेडियो स्टेशन से मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़ में नश्र हुआ। आज़ादी की साअतें करीब से करीब तर आ रही थीं, मगर उन दिनों लाहौर शहर की हालत क्या थी? मुस्तफ़ा अली हमदानी। शहर लाहौर आग के शोलों की लपेट में था। कर्फ्यू का निफाज मामूल बन चुका था। बमों के धमाके और गोलियों की आवाज से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। बिजली और पानी का निजाम दरहम बरहम हो चुका था। बाजार और सड़कें सुनसान और वीरान थी। 13 अगस्त 1947 का दिन तुलू हुआ और फिर रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर मरकज का इख्तितामी ऐलान भी इसी आवाज में हुआ। अब गुलामी और आज़ादी के दरमियान सिर्फ
60 मिनट का फासला था। आज़ादी का सवेरा होने वाला था। मैं रेडियो पाकिस्तान के पहले अनाउंसर की हैसियत से स्टूडियो नंबर 5 में पहुंच चुका था। नजरें दीवार पर लगी हुई घड़ी की सुइयों पर मरकूज थी। सिग्नेचर ट्यून बज रही थी। फिर यकायक स्टूडियो की सुर्ख बत्ती रोशन हुई। स्टूडियो की सुर्ख बत्ती रोशन होते ही घड़ी की दोनों सुइयां 12 के हिस्से पर गले मिली और पाकिस्तान की आज़ाद फिजा में मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़ यूं गूंजी, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। जी चलें जी जनाब, आप सबको जी, मुबारक हो। जी सबको मुबारक हो हमारी तरफ से। आज़ादी की हम जबरदस्त, आज हमने यहाँ पे बिल्कुल जश्न आज़ादी तमाम दोस्तों को मुबारक हो। हम सबको भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत खुशियां लेकर आए और इलाही आमीन, इलाही आमीन। और पाकिस्तान में अमन और चैन और जो हम चाहते हैं, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं तारीख की दुरुस्तगी वहां पे इस साल ही हो जाए तो समझेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। और हमने आगाज कर दिया, हो गया। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अच्छी सी दुआ देते हैं। और हम ये हमारी जो आने वाली नौजवान नस्ल है, ये बच्चे हैं, इनको ये चीजें पता चलें कि किसने ऐलान किया, कैसे किया। आप उनकी फीलिंग्स बताएं ना कि वो क्या शेयर करते थे आपसे कि जब उन्होंने आपके वालिद ने ऐलान किया तो उनको कैसा महसूस हुआ और उसके बाद वो कितने फख्र से कहते थे। हमदानी साहब, देखिए, इससे बड़ी फीलिंग तो कोई नहीं हो सकती उनकी कि उनकी पैदाइश थी 9 जुलाई की, तो वो 14 अगस्त को अपनी बर्थडे मनाया करते थे। वाह। हाँ, और एक बड़ी अजीब बात इस मौके पे कहनी अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन ये कि तारीख का हिस्सा है। जब हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था तो जो हालत हमने उनकी देखी थी, तो वो बस एक ही सजदा शुक्र अदा करते थे और कहते थे कि परवरदिगार का शुक्र है कि मैं इस ऐलान के लिए नहीं था। लेकिन अब भी कभी कभी मैं ये जरूर सोचता हूँ, देखिए ये खुशी के दिन होते खुशी के लिए हैं, लेकिन ये अपने एहतसाब के लिए भी होते हैं। बिल्कुल सही। हम ये देखें कि जिस मुल्क ने हमें ये सब कुछ दिया, आखिर हमने उसे क्या दिया? क्या दिया? बहुत खूबसूरत बात। आप यकीन करें, हमने इस मुल्क को सिर्फ तकलीफ लिया। हमसे मुराद मैं, आप और निगत नहीं है। हम तो शायद वो हैं जिन्होंने बाहर आके भी इसी मुल्क के लिए किया जो कुछ किया। जी, हम तीनों पैसे वाइज वही हैं जहां पाकिस्तान में थे, लेकिन हमने बाहर बैठ के अपने मुल्क के लिए जितना काम किया है, मुझे कहने दीजिए खुल के, किसी को अच्छा लगे या बुरा, शायद हमारे आज तक के सिफारत खानों ने वो काम नहीं किया जो काम यहाँ के अवाम ने किया है। देखिए, सफीर एक मुद्दत के लिए आता है, चला जाता है। असल सफीर मैं और आप हैं। मुझे और आपको सड़क पे चलते हुए देखकर मेरी आदत से, मेरे अतबार से, मेरे ख्वास से, मेरे चेहरे बुशले से वो पहचान के कहता है कि ये पाकिस्तानी है। इस मुल्क में हम और आप रहते हैं खुशकिस्मती से। यहाँ हमें अपना कौमी लिबास पहनने में कोई आग नहीं है, हमें नहीं देखता है। कहने का मतलब ये है कि मिन हैसुल मजमू अगर हम ये देखें, ये जिस कजिए की भी हम बात कर रहे हैं और जो सिर्फ 14 अगस्त को ही नहीं होनी चाहिए, पूरा बरस कहीं ना कहीं ये बातें होती रहनी चाहिए। डॉक्टर निगर साहिबा ने शुरू में बात की थी
کہ کسی بھی حکومت کی ترجیح میں یہ چیز نہیں رہی کہ اس مسئلے کو یہ کہہ کے ونس فار آل ختم کر دیں کہ اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی. ہم 1947 سے لے کر آج تک 14 اگست کو اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں, لہٰذا کسی جگہ اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی. اب دیکھیے, اچھا میں اس سے آگے بڑھ کے بھی ایک فکرہ کہتا ہوں, آپ کو اچھا لگے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو, میں آپ کو یقین سے کہوں, یہ کوئی 20-22 کے قریب لوگ ہیں ٹوٹل جنہوں نے یہ قضیہ چھیڑا ہوا ہے, لیکن ان کے پاس چونکہ میڈیا ہے, ان کے پاس کتابوں کی اشاعت کی طاقت ہے, تو وہ یہ اس بات کو پھیلاتے ہیں. میں اکثر یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ظلم دیکھیں کہ یہ لوگ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا تھا, ظالم پاکستان کا یوم آزادی 14 کو ہی مناتے ہیں. یار تم تو کم از کم 15 کو منا لو. مجھے دوستوں نے کہا جی کہ 15 بڑی متبرک رات تھی, 27ویں شب تھی. تو میں نے کہا انڈیا کو بھی مبارکباد دیجئے کہ انڈیا بھی ایسی مبارک شب میں مالد وجود میں آیا. 27ویں شب کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا, وہ نہیں چینج کر سکتے. ٹیکنیکل نقطہ مجھ سے سن لیجئے, اس کے بعد دوسرے طرز کی باتیں کرتے ہیں اس قضیے کو چھوڑ کے. دیکھیے ہندو میتھولوجی میں ان کا دن جو ہے وہ ہمارے کیلنڈر کے حساب سے شروع نہیں ہوتا. ان کا دن سورج چڑھنے کے ساتھ شروع ہوتا. لہذا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ طے کیا کہ پاکستان 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو, یعنی 14 اگست کو آزاد ہو جائے, اور 14 اگست کی رات کو 12:01 پہ چونکہ نیا دن چڑھ جائے گا تو انڈیا آزاد ہو جائے. لہذا تاریخ کی کتب اٹھا کے کوئی بھی پڑھے اور مجھے غلط اور جھوٹا ثابت کرے. جی بالکل. نہرو صاحب نے اپنی اسمبلی میں یہ کہہ کے کہ رات کا گجر 12 بجا رہا ہے اور بھارت کو آزادی مل رہی ہے, 14 اور 15 کی درمیانی رات کو اپنی آزادی کا اعلان کیا. تو کیلنڈر کے حساب سے تو ان کی 15 ہو گئی, اس لیے ان کے جوتشی راضی ہو گئے. لیکن جب سورج بیدار ہوا تو ان کا 15 ہو چکا تھا. لہذا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لال قلعے کے اندر, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, ان کی فلمیں بھی موجود ہیں ساری کتابیں, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 کو کراچی میں قانون ساز اسمبلی کو اقتدار منتقل کیا, اور 15 کو لال قلعے میں صبح اور رات کو 12:01 پہ ان کی اسمبلی کے اندر اقتدار منتقل کیا. یہ اس کی اصل حقیقت ہے. اب اس رسی کو کوئی جتنا بھی رگڑنا چاہے رگڑ لے, اس سے پاکستان کی 14 کی آزادی کا دن ختم نہیں ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے آپ نے جتنا اس موضوع پہ کام کیا, آپ کے گھر سے جتنا کام ہوا اس کے اوپر, آپ کے دوستوں میں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب بھی اپنے حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تصحیح جو ہے وہ ہوتی رہے. اپنے حصے کا کام ہمیں جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کب اس کے اوپر نظر ثانی کرتی ہے. مجھے افسوس صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایک قومی ورثہ ہے, سمجھنا چاہیے اس کو, اور تاریخی اہمیت ہے ہمارے پاکستان کے قیام کی, ایک بہت بڑی دستاویز ہے یہ. اور یہ اس کے ساتھ اس قدر ناانصافی جو ہے یہ واقعی قابل. آپ کبھی میری اس دلیل کو اس طرح سے بھی سوچئے, مجھ جیسے کو تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے, میں اس تھوڑے سے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے بھی پسینے سے شرابور ہو رہا ہوں بہت سی چیزیں سوچ کے, کہ ارسطو اللہ کے آخری نبی, ہم سب کے آخری رسول کی سے 1000 سال پہلے پیدا ہوا تھا. جی کتابوں میں آپ کو ارسطو کا یوم ولادت بھی ملتا ہے, بالکل, اور یوم وفات بھی ملتا ہے. بالکل. اور ہمارا مسئلہ صرف 1947 کا ہے. یہ قوموں کے رویے ہوتے ہیں دراصل. ہمیں آزادی کی یہ نعمت, میں مانتا ہوں بہت قربانیاں دینی پڑی, وہ ان سے پوچھئے جن کے ماں بہن بھائی بیٹے ٹرینوں میں کٹ کے آئے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کے ہسٹری کے نصاب میں یہ لائنیں پڑھی ہیں. اللہ مجھے معاف کرے, میں جھوٹ بہت کم بولتا ہوں, یہ نہیں کہتا کہ بولتا نہیں ہوں, نبی ولی نہیں ہوں,
ये अपनी आंखों से ये फिक्रे पड़े हैं कि कायदे आजम ने पाकिस्तान टेबल टॉक पे हासिल किया था। माय गॉड, उन लोगों से ये पूछा जाए कि ये जो ट्रेनें कट के लाहौर आई थी, जिनकी सारी पटरियों के ऊपर खून बह रहा था, मशकूर हुसैन याद साहब की किताब पढ़िए तो आदमी आधा मर जाता है और किताब पूरी नहीं पढ़ सकता। ऐसे खानदान अभी मौजूद हैं, मगर डॉक्टर साहिबा और शफक साहिबा हम क्या करें, जिस मुआशरे में रहते हैं वहां पिछले निस्फ सदी से हर 14 अगस्त को ऐसे खानदानों के लोगों को तहरीक पाकिस्तान के हवाले से अवार्ड दिए जाते हैं जिनकी 4 नस्लों ने किसी तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा नहीं लिया था। मुझे ऑन रिकॉर्ड रखने दीजिए, ये आपके क्रेडिट में आएगी ये बात। जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में, ये प्रोग्राम हम बीबीसी से कर चुके हुए हैं इसलिए खुल के कह रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल, जो उस एक वजीर खारजा के खानदान का है। उनकी हिस्ट्री की किताब में आप सर पीटेंगे जो बात मैं बताने लगा। उनकी हिस्ट्री की किताब में मोहतरमा फातिमा जिना का नाम निकाल के उनकी वालिदा का नाम डाल दिया गया। माय गॉड, ये रिकॉर्ड पे है ये बात, हमने पूरा प्रोग्राम किया। बेगम जिया खान उस वक्त जिंदा थी, बहुत बड़ी तहरीक की। मैंने उनसे पूछा था और मेरी एरिया ने उनसे पूछा था कि आपने कभी मुशर्रफ साहब की वालिदा को देखा था तहरीक पाकिस्तान में? तो उसने कहा कि इतनी औरतें थी, जो सफ़े अव्वल की औरतें थी उनमें तो नहीं थी। मुझे याद है उस वक्त के वफाकी मुंसफ जो थे, मैं इस्लामाबाद उनसे खास तौर पे मिलने गया था किसी एक सिफारिश के साथ, और मैंने उनसे पूछा था कि आपको इस तारीखी बदयानती का इल्म है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है कि मुशर्रफ साहब की वालिदा का नाम डाला गया है, मुझे एतराज इस पे है कि मोहतरमा फातिमा जिना का नाम क्यों निकाला गया। बिल्कुल, जब आप तारीख के साथ, चाहे वो इस्लाम की तारीख हो चाहे वो पाकिस्तान की तारीख हो, जब इस किस्म के खिलवाड़ करेंगे तो फिर आपके साथ आलमी सतह पर वही होगा जो होता रहा है, फिर आपकी बात का वजन नहीं रहता किसी चीज। देखिए हम इन अजाबों में से गुजरे हैं और आज के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं है कि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भी याद करें, हम अपने आने वाली नस्ल के बारे में सोचें कि हम उन्हें क्या दे के जा रहे हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ, आज मैंने अपने अखबार में अपनी बेटी का मजमून लगाया है अपने दादा पे, और मेरा नवासा जो है वो अपने परदादा पे एक 5 मिनट की टॉक करना चाह रहा है। अब्बास 9 साल का बच्चा है। तो मैं बहुत खुश होकर घर वालों को कह रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी बाप की अमानत अपनी तीसरी नस्ल के स्पोज कर रहा हूँ, मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। शफक अपनी जगह पे पहचान का अपना काम कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा सारा दिन जैसे सर मारती हैं इस उम्मत के साथ, मुझे इल्म है इनका भी मेरे वाला ही हाल होना है तकरीबन। हम सब अपने अपने हिस्से का काम जरूर कर रहे हैं, मगर शफक बीबी ये काम किसी जगह पर एक मरकज पे जमा होता है, उसको कहते हैं हुकूमत। किसी हुकूमत को आज तक ये ख्याल नहीं आया। आप हैरान होंगी, मैंने अपने वालिद की कुछ चीजें 1974-75 में जब पहला नेशनल आर्काइव ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तानियों को भी नहीं पता कि पाकिस्तान में इस नाम का एक इदारा है, इस्लामाबाद में बना था। अतीक मुफ्ती साहब, मुझे नाम फौरन याद आ गया, अतीक मुफ्ती साहब उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो मैंने अपने वालिद के हाथ का लिखा हुआ ये ऐलान जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, वो उन्हें नेशनल आर्काइव ऑफ पाकिस्तान में रखने को दिया था, और ये ऐलान भी उन्हें दिया था। की बात है कि पाकिस्तान टेलीविजन पिछले कई बरस से रात को 12 बजे अपनी नशरियात रोक के और वालिद साहब की तस्वीर दिखा के और रेडियो की तस्वीर दिखा के ये ऐलान चलाता है। मेरे इदारे से कोई पूछे जिसको ये फखर हासिल करना चाहिए था और जिसे कैश करना चाहिए था, कोई उस वक्त न टीवी था न कुछ था, इदारे को आज तक ये तौफीक नहीं हुई कि उसकी सारी रात नशरियात चलती हैं, वो नशरियात रोके और कहे कि ये फखर सिर्फ और सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के हिस्से में आया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो जगह है जहां हम एहसान फरामोश है।
हमने अपनी ऐसा बता रहा है, आज हमने कोशिश की है कि हम वो ऐलान सुनाए, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, कितने सारे लोग देख रहे हैं आज, और कमेंट्स लिख के, और ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को आप शेयर करें, बड़ा तारीखी प्रोग्राम है। मुस्तफा हमदानी साहब की जबान और उनके बेटे जो है यहाँ मौजूद है, सफदर हमदानी साहब, और हमने ये ऐलान दोबारा चला है। अब आपने एक अच्छी सी कोई नज़म सुनानी है, और निकट आपने भी सुनानी है पाकिस्तान के हवाले से, और दुआ भी करनी है। देखिए, मेरी तो याददाश्त बहुत खराब है, और शुक्र है परवरदिगार ने ये मेरे लिए नेमत रखी है। आप कभी गौर कीजिए कि जिस आदमी को हिस्ट्री की इतनी चीजें याद हैं, उसे अपनी पोइट्री की 4 लाइनें याद नहीं होती। इससे हट के निकाले, इसके हट के मेरे मिजाज का एक शेर सुन लीजिए। जरूर। तुम खुश हो कि इस सर पे है दस्तारे फजीलत, तुम खुश हो कि इस सर पे है दस्तारे फजीलत, दस्तार में सर होता है ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में होता है। और तुम नाप चुके धूप में सूरज की तमाजत, अब शब की तवालत को भी इम्कान में रखना। साहिबा को ऐसी नज़में बहुत याद होती हैं, और मैं भी मुहिब्बे वतन हूँ, मगर ये तो हुब्बे वतन है खुद। जी साहिबा सुनाइए ना। ओह माय गॉड, बात सुनिए, मुझे आपको मालूम कि मुझे एन वक्त पे कुछ भी नहीं मिलता है, ना इसे मुझे पहले कहा। हालांकि देखिए, वाव वक्त होता है, एन वक्त नहीं होता, लेकिन बहरहाल आपने हमारी उर्दू को भी सही करने का जारी रखी है। सो आप जब तक वो नज़म तलाश कर रही हैं, जो अहले ज़बान है उनको थोड़ी सी हिदायत फरमा दीजिए कि अपनी ज़बान से मोहब्बत करना कितना जरूरी है। मैं इतने दिनों से जो प्रोग्राम कर रही हूँ लाइव, तो मैं हमने हिंदी ज़बान की भी अफादियत बताई और अहमियत बताई और क्यों बोलना चाहिए, और आज पश्तो की मेहमान थी आज हमारी, तो अपनी अपनी इलाकाई ज़बान और उर्दू ज़बान इन मुल्कों में बोलना क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, थोड़ा सा इरशाद कीजिए, और जब तक आप नज़म ढूंढ लें। मैं नॉर्मली ये आजकल खास तौर पे ये जूम टाइप के प्रोग्रामों में मैं नहीं आता हूँ, और ख़ास तौर पे मुशायरों को तो मैंने 3 मरतबा तलाक कह के तलाक दी क्योंकि अब हर आदमी के हाथ में बंदर वाला नारियल आ गया हुआ है। उनका एंकर भी वही ज़बान बोलता है जो आगे बाकी लोग बोलते हैं। गजल पेश कर रहे हैं तो गजल फिर सुनी है जैसी भी गजल होती है। देखिए, मैं एक फिक्रे में आपको बात बताऊं, मैं लिसानियात का स्टूडेंट हूं, मैंने स्पेशलाइज भी लिसानियात में किया हुआ है। माशाल्लाह। किसी भी कल्चर की जो बुनियादी 3 शराइत है, उसमें उसकी अक़दार और उसके आबाओ अजदाद, उसका पस मंज़र तो शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत उस वक्त तक वो कल्चर कहलाता ही नहीं जब तक उसकी अपनी जबान ना हो। अच्छा, और जबान की पहली शर्त जिसे लिसानियात के माहिरीन ने जबान के लिए ऑक्सीजन कहा है, वो उसका रस्मुल खत है। हमारी आज 2020 में ये हालत है कि बहुत एहतियात के साथ ये फिगर आपको बता रहा हूं, और कभी इस पे प्रोग्राम कीजिएगा, आपके प्रोग्राम में हाजिर हो जाऊंगा मैं इस बात के लिए। हमारे 80% शायर और अदीब रोमन में लिखते हैं, उन्हें उर्दू में टाइप करना नहीं आता। उसकी वजह ये है कि वो आज भी इस जदीद तरीन दुनिया में टाइप को कलर का काम कहते हैं, और मैं बहुत खुल के ये कहता हूँ कि वो काम तो कलर का जरूर होगा, मगर ये कलर काना ज़हनियत है। अब ये जो रोमन है, ये देखिए, ये ना कोई जबान है, ना ये लहजा है, ना ये रस्मुल खत है, ये पॉइजन है जबानों के लिए। पॉइजन है। आपके नजदीक हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी जबान जिसके बहुत से अल्फाज हमारे उर्दू में है, जिसे हम टर्किश जबान कहते हैं। हिस्ट्री में टर्किश जबान की बर्बादी और खत्म हो जाने की वजह रोमन जबान लिखी है। बिल्कुल। कि जब लोगों ने बआसानी रोमन लिखना शुरू कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जबान से दूर हो गया। जिस मुआशरे के अंदर
जिसे हम मगज़ कहते हैं, मुआशरे का अदीब शायर, अपने रस्मुल खत में नहीं लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, तो वहां आप हाल देख लीजिए जबान का क्या होगा। मैं आप बहुत खुशकिस्मत है इस हवाले से, नहीं कि हम उन घरों में पैदा हुए जहां उर्दू जबान से मोहब्बत की जाती थी, बोली जाती थी। डॉक्टर साहब बैठी हैं, मेरे एक पुराने कॉलम में मैंने ये लिखा था कि बड़े मजे की बात है कि मेरे बच्चे जो यही परवान चढ़े 1-1 साल 1.5 साल के थे जब आए थे बरतानिया, जब ये पाकिस्तान जाते हैं तो अपने कजन से उर्दू में बात करते हैं, वो इन्हें अंग्रेजी में जवाब देते हैं। ये अलमिया है हमारा जबान के एतबार से। अब हालत ये हो गई है शफक बीबी, खास तौर पे टेलीविजन, रेडियो और इन जगहों पर, कि पहले मैं कभी कहता था कि यार चलो तलफ़ुज़ खराब हो आदमी चल जाता है, अब तो मैं ये कहता हूँ कि बंदा गूंगा भी हो ना, गूंगा, तो वो भी रेडियो टेलीविजन पे चल जाता है। रेडियो पहले माइक्रोफोन या सॉफ्ट की चीज थी, आवाज थी, आवाज खत्म हो गई। टीवी आवाज और सूरत की चीज थी, माओ ने खूबसूरत बेटियां ही जन्नी छोड़ दी, लेकिन टेलीविजन चल रहा है। हमारे यहाँ लिसानियात की बहुत बुरी हालत है, कभी लिसानियात की सूरत हाल पे जरूर एक प्रोग्राम कीजिए। हो सकता है कि ये अवामी तर्ज का प्रोग्राम ना हो, आपको हिट्स बहुत ज्यादा ना मिले, आपके देखने वाले बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से एक ऐसा प्रोग्राम इसी प्रोग्राम की तरह का कर लेंगे। देखिए इस प्रोग्राम को देख, लेकिन आपने एक हिस्ट्री मुरतब करके रख दी है एक जगह पर, जो काम 72-73 साल में पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं कर पाई। बात देता हूँ इसलिए नहीं कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ, इसलिए कि आपने एक वो दस्तावेज तैयार करके रख दी जो 13 और 14 अगस्त के हवाले से एक बयानियाई हकीकत। माय प्लेजर, बहुत बहुत खुशी की बात है, और हम से मोहब्बत करनी है, तो इसलिए हमने अपनी जबान में ही आज ये प्रोग्राम किया। जी निगाह आप। बस मैं मुश्किल से मैं एक कताई ढूंढ पाई हूँ, वही सुना देती हूँ। जी, आप सबकी नज़र है, मुनाफिकत का रवैया अगर नहीं है तो फिर, मुनाफिकत का रवैया अगर नहीं है तो फिर कलम की नोक पे हक व उसूल उगता है। वाह वाह। कलम की नोक पे हक व उसूल उगता है, बदल गया है मिजाज ऐसा अपनी मिट्टी का, बदल गया है मिजाज ऐसा अपनी मिट्टी का, गुलाब उगता नहीं, गुलाब उगता नहीं है, बबूल उगता है, बबूल उगता है। मुनाफिकत का रवैया अगर नहीं है तो फिर कलम की नोक पे हक व उसूल उगता है, बदल गया है मिजाज ऐसा अपनी मिट्टी का, गुलाब उगता नहीं है, बबूल उगता है। शफक बीबी, मुझे आखिरी बात कहने की इजाजत दीजिए, मेरे ज़हन में अभी आ गई और सांस का कुछ पता नहीं है, ये कर्ज न रह जाए मेरे पे। देखिए, हम जैसे लोग, जिन्हें लोग तनकीद करने वाला कहते हैं और बुरे अल्फाज में कहते हैं, उन तमाम लोगों तक मैं एक पैगाम आपकी तवज्जो से पहचानना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग जो तनकीद करते हैं तो हम गोलियों की बौछार के सामने आते हैं, हम में इतनी हिम्मत है। अगर हम अपने मुल्क के किसी निज़ाम पे किसी गलत चीज पर गुफ्तगू करते हैं तो हमें गद्दार ना समझा जाए। हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। कायनात में अल्लाह के रसूल से लेके, अल्लाह से लेके, आले रसूल से लेके सफदर हमदानी साहब से मोहब्बत के मयार का कोई पैमाना इजाद ही नहीं हुआ। आप जो बड़ी आसानी से दूसरे को दुश्मन वतन और गद्दार करार दे देते हैं, कभी ये सोचिए कि हम जैसे लोग किस बोझल दिल के साथ आंखों में किस तरह से पानी की बाढ़ को रोक के अपने मुल्क की किसी गलत बात को गलत कहते हैं, इसलिए कि 2 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2 लोगों में इतनी हिम्मत होती है जो सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सामने खड़े होकर आपको आपकी गलती का एहसास दिलवाएं। लेकिन आईना क्योंकि झूठ नहीं बोलता है,
और आपको हम जैसों की गुफ्तगू में अपनी मकरू शक्ल नजर आती है, इसलिए आप हम जैसे लोगों को गद्दार और ये, मैंने सोचा कि वो आदमी जिसके बाप ने पाकिस्तान बनने का पहला ऐलान किया हो, आप मुंह खोल के उसको मुल्क दुश्मन और गद्दार कह लें और उसके खानदान को ऐसे कह लें। मैं, आप, शफक, हम सब जो बाहर रहते हैं, यकीन कीजिए मैं बड़ी हिम्मत से ये बात कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से ज्यादा मुहिब्बे वतन है। हम अपने बच्चों को यहाँ ईद पे, शब बारात पे, इन त्योहारों पर एक खास मोहब्बत के साथ अपना लिबास पहनाते हैं, उन्हें बाहर लेके जाते हैं। हम कैसे कलाम पाक की उन्हें तालीम दिलवाते हैं, हम कैसे अपनी जबान उन्हें सिखाते हैं। ये काम पाकिस्तान में नहीं हो रहे हैं। 15 मिनट के लिए लाहौर के लिबर्टी चौक में जाके खड़े हो जाइए, आप हैरान हो जाएंगे। वो शर्टिंग और वो आधे कपड़े आप सिडनी में और लंदन में नहीं देखेंगे जो आपको वहां नजर आ रही है। तो मुझे कहने दीजिए कि हम जो लोग बाहर रहते हैं, छोड़ दीजिए इस बात को कि हम आपको ज़र मुबादला भेजते हैं, ये हम पर कर्ज है इसलिए भेजते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि हम सिर्फ ज़र मुबादला भेजने के लिए नहीं है, हम आपसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि ये एक नेचर का उसूल है कि जिस चीज से आप जितना दूर होंगे उससे मोहब्बत उतनी ही ज्यादा होती है। और हमारा दिल तो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ धड़कता है। सफीर पाकिस्तान, हम सब अपने अपनी जगहों पर ये रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी ये लम्हा है सोचने का कि पाकिस्तान के ऊपर आपने किस तरह वक्त लगाना है और क्या जिम्मेदारी है आपकी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप आजादी को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आजादी की असल रूह को नहीं समझ रहे, क्योंकि चराग शब को जैसे आंधियां अच्छी नहीं लगती, चराग शब को जैसे आंधियां अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसे ही हमें खुशफहमियां अच्छी नहीं लगती। और जिन्हें सोने के पिंजरे में ग़िज़ा मिल जाए चांदी की, सर जिन्हें सोने के पिंजरे में ग़िज़ा मिल जाए चांदी की, उन्हें फिर उम्र भर आजादियां अच्छी नहीं लगती। अपनी आजादी बहुत अजीज है और हम इस आजादी की हिफाजत करेंगे। उनसे पूछें जो कश्मीर में या फलस्तीन में आजादी के लिए तरस रहे हैं। और डॉक्टर निगहत नसीम का ये जुमला कि साहिबे वतन होने का एहसास कितना बड़ा होता है, तो हम सब साहिबे वतन होना नसीब की बात है, नसीब की बात है। इसके साथ ही कि फिर आएंगे इसी तरह के प्रोग्राम लेके। आज का प्रोग्राम था, मैं एक वीडियो चला रही हूँ जो खास तौर पे पहचान टीवी ने बनाई है, और उसमें कुछ नाज़रीन की ख्वाहिशात है, कुछ जुमले हैं और कुछ वो गीत हैं, वो तराने हैं जो एक जोश ले आते हैं हम सब में। है, हमें अपने बचपन की यादें, अपने कॉलेज का जमाना याद आता है। हम सब की तरफ से आप सब लोगों को फिर से जश्न आजादी मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें और इस यकीन के साथ कि ये आजादी इसी तरह कायम रहेगी अगर हम सब अपना अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। इस वीडियो को एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जश्न आजादी सबको मुबारक। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।
پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ 14 اگست کا دن ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک ایسی پیاری اور سہنی دھرتی پہ رہتے ہیں کہ جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانی دی. ہمیں اس دھرتی کا قرض اتارنا ہے اور مل کر گانا ہے سہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے. اس سہنی دھرتی کی حفاظت کے لیے ہمارے افواج پاکستان کے شیر دل نوجوان صبح و شام کی فکر کیے بغیر سرحدوں پر نہ صرف حفاظت کے لیے پہرا دیتے ہیں بلکہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ملک کے اندر پھیلنے والے انتشار کو روکنے کے لیے بھی اپنی خدمات سے کوتاہی نہیں برتتے. ہم سب کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہم نے مل کر پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کرنا ہے اور مل کے گانا ہے جیوے 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 پاکستان. جیوے 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 پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان. پاکستان 4 صوبوں والا خوبصورت ملک جس کا ہر صوبہ نرالا ہے، جس میں بسنے والے لوگ بہت پیارے اور بہت محبت کرنے والے ہیں. دنیا کو بتانا ہے کہ ہم فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے، ہم صوبائیت کے زہر سے نہیں لبریز ہیں بلکہ ہم تو پاکستان کے اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں اور ایک رہیں گے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک سانچی اپنی خوشیاں سانچی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی خطے، کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر میں جا کے آباد ہو جائیں، لیکن ہماری روح، ہمارا دل پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ہم اپنے وطن کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہماری عقیدتیں، ہمارا پیار پاکستان پاکستان. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے پہ
یہ وہ مہینہ ہے اور وہ دن ہے کہ ہم سب کا دل بے قرار ہو کر یہ کہتا ہے دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں. بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. دل پاکستان جاں پاکستان، دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان، دل دل پاکستان جاں پاکستان، دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان. دوستوں آؤ کہ تجدید وفا کا دن ہے، ساتھ عہد محبت کو ہنا رنگ کرے. ہونے دل غازہ رخسار وطن ہو جائے، اپنے اشکوں کو ستاروں سے ہم آہنگ کریں. آؤ لکھیں کہ ہمیں اپنی امامی رکھنا، احتساب عمل دیدہ تر ہونے تک. ہم تو مر جائیں گے ہے عرض وطن، پھر بھی تجھے زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. آج پھر تجدید وفا اور عہد وفا کو دہرانے کا دن ہے. تمام اختلافات کو بھلاتے ہوئے اپنے وطن کی سربلندی کے لیے اپنے بزرگوں کی قربانی کو بھی یاد کرتے ہیں اور اس وعدے کو بھی یاد کرتے ہیں جو ہم نے قائد اعظم کی روح کے ساتھ کیا تھا، جو ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا. اور ہم اس وطن کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. آئیے مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے آخری سانس تک. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. پاکستان زندہ باد. یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے